and today we are going to start with compound join. Okay, so I think we have already discussed what is compound join and how we are going to execute it. Let's see one more time. So I discussed in the previous class that compound join is a kind of join which basically clubbed together n number of joins, and if this kind of scenario we have, then that scenario will be taken as a compound join statements, right? Following points should be noted about such compound join statements, which are that we have discussed that if you found any kind of compounding statement in terms of joins, then your execution will be from left to right. Okay, so the syntax is very simple, that you need to select column or you need to select number of columns. Over that columns you are going to apply number of joins, maybe collection of simple joins, maybe collection of one join again and again, maybe different joins again and again, with on and where condition, followed by order by, limit and offset. You already know what is offset, you already know what is limit, and you already know what is order by clause, right? Virtual table which we are going to create is basically created by processing the joins from left to right. Okay, second point is multiple conditions can be specified. Yes, multiple conditions can be specified with on and where clauses, and the rows which do not specify or satisfy the given conditions are simply dropped from the virtual table. We have already seen it in the last lecture. Okay, and on and where are interchangeable. Okay, now to sum up this compound join, I am floating one question and you need to solve that question again in the same time frame, and then we'll explain it. So solve this question. So in this question, they have given the three tables. One table is known as supplier table, another table is parts table, and third table is catalog table. Okay, and what is the output of the given query? They are demanding the query is select supplier name, parts name from catalog C1, inner join supplier S1, inner join parts P1. So simple, we have seen it's a sheer case of compound join. Okay, now in the compound join, what we have seen that the execution of query will be from left to right. So it has been very clear that we need to first of all make a virtual table between catalog C1 and with supplier S1. So let's suppose this is my catalog table C1 and this is my S1 table, right? Now what we are going to do, we are going to perform inner join, and as I discussed in the last class, that inner join is equivalent to cross join. Inner join is equivalent to cross join. And what is cross join? Cartesian product of both the tables. Cartesian product of both the tables. But in the inner join we have one more clause that is known as on. अब हम चेक करते हैं कि इसकी on की कंडीशन कौन सी हो सकती है. तो कैटलॉग को हमने एलाइज किया है किस नाम से? C1 के साथ, और सप्लायर को हमने एलाइज किया है S1 के साथ. So let's see the condition. C1 dot supplier ID equal to S1 dot supplier ID and P1 dot part ID equal to C1 dot part ID. That means C1 dot supplier ID equal to S1 dot supplier ID. We are demanding it, right? So let's see. So the virtual table between S1 and C1 will be like this. We have supplier ID here. Then we have supplier name. Then we have parts ID. Then we have again we have parts ID and we have supplier ID. ओके यहां पर हमने क्या देखा? नेचुरल ज्वाइन को अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्ट नेचुरल ज्वाइन, ऑल अदर ज्वाइंस अलाउज डुप्लीकेसी. ऑल अदर ज्वाइंस अलाउज डुप्लीकेसी. मैं इन दोनों टपल्स की वैल्यूज नहीं डाल रहा क्योंकि टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा. वी हैव अ रिस्ट्रिक्टेड ऑफ स्पेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस. सो लेट्स सी. सो सप्लायर आईडी 101. Here we have supplier ID 101. Corresponding to 101, the supplier name is सुनील. इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है, तो इन दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स आएंगे. कितने? सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर टेबल से आएंगे, सप्लायर आईडी, पार्ट्स आईडी, कैटलॉग टेबल से आएंगे. ठीक है, तो 4 टोटल हो गए. सप्लायर आईडी 101, सप्लायर नेम इज सुनील, देन वी हैव पार्ट आईडी एस 200, and then we have part ID here 200. I'm not writing these two part ID. Okay, then we have another one 101. This is 101. We have name as Sunil. Then we have part ID as 201, right? Then we have 102 here. Corresponding to 102, the name of the supplier is
Ravi. Okay, then we have part ID as 203. Similarly, we have 102, this tuple, this supplier ID, name is Ravi, and we have 201 as part ID. Then we have 103. Yes, here we have 103. Name of the candidate is Arya. The ID is 201. Then we have 104. The name of the candidate is, sorry, for 103, the name of the candidate is Shyam. And for 104, we have the name as Arya. And the part ID is 202. Okay, now, so from both these tables, we got this as my virtual table. So this is my virtual table. Now, इस से हमें मिला एक virtual table, and corresponding to this virtual table, now we are going to apply inner join on P1. अब P1 के लिए inner join के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस वाली पे? तो we have part ID, we have part color, part name and part price. So let's make it as part color. We are writing it as part name, and we are writing it as parts price. Okay, so let's see. So the part color is red. For 20200, part color is red, P1, and 10 is the price. For 201, again part color is red. The sorry, for this is 201, this is green. The part color is green, and we have P2 and color is price is 20. Okay, now for 203, again we have green. Then we have P4 and price is 25. For this, we have again green 201. We have P2 and price is 20. For 201, again we have green P2 and 20. And for this, we have red P2 and we have 20. Okay. Now, the last part is, it is saying P1 dot part color is equal to red. That means we are going to pick up only those tuples which are having part color as red. So that means we need to pick this one and we need to pick this one. And over the select, we have supplier name and parts name. So supplier name is Sunil. Yes. And part name is P1. Part name is P1. Then again we have supplier name is Arya and part name is P2. So as per your explanation, answer will be C. Let's start with the aggregate functions. So these are the count aggregate function. First one is count. Another one is minimum, then maximum followed by average, and finally we have sum. So these are the 5 एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें से मैंने आपको बताया सिर्फ काउंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको नल एंटरटेन करता है, बाकी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ नल का कोई रिलेशन नहीं है. अगर नल होगा भी तो उसको वो इग्नोर करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन appropriately. The correct answer is D. Today we are going to start with the fresh topic now, and which is known as my group aggregate functions. Okay, now अभी तक हमने बात की है एग्रीगेट फंक्शंस की, और हमने ये देखा है कि एग्रीगेट जितने भी होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, वो एक सिंगल कॉलम पे एप्लीकेबल होते हैं. दे आर एप्लीकेबल ऑन सिंगल कॉलम. फाइन. नाउ द point is, instead of applying the aggregate functions to an entire column, we can apply aggregate functions to groups of data. And this particular functionality, if we want to achieve, then that can be achieved with the help of group by clause. That can be achieved with the help of group by clause. So समझ आ गया आपको लॉजिक में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं और मुझे गर्ल्स के एवरेज मार्क्स पता करने और बॉयज के एवरेज मार्क्स पता करने हैं, तो अगर मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल कॉलम में डाल दूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, तो मेरे लिए इजी नहीं है कि मैं बॉयज और गर्ल्स का इंडिविजुअल एवरेज फंक्शन निकाल पाऊं या एवरेज वैल्यू निकाल पाऊं. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे बॉयज और गर्ल्स को ग्रुप करना पड़ेगा, और देन आई कैन प्रोसीड विद माय एग्जैक्ट आंसर और इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू वांट फ्रॉम द टेबल. सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू फॉर मेकिंग दोज ग्रुप्स, यू नीड टू use group by for
the requirement of grouping. Okay, so this is the syntax of my group by. How we are going to do it? We have aggregate function which is going to be applicable on column name. Aggregate function must always have this syntax, and it is going to be have column name from table, condition, limit and group by. Okay, यहाँ पर मैंने order by नहीं लगाया है because order by still does not affecting it. Okay, now let's see the execution of the query of order by, sorry, group by. Okay, suppose this is my query. क्या है query में कि मुझे select करना है sum column A from table P, from P condition है ये, group by करना है on the basis of B and limit is 2 and offset is 2. So let's see the execution of this. Suppose ये मेरा पहला statement आया. My first step is from gets executed. अभी आपको order of execution अगर पता चल जाएगा then it will be more easy for all of you to understand कि how the query will be executed. Okay, so the very first step is from gets executed. तो from P से मुझे same ये मिलेगा. This is my virtual table क्योंकि यहाँ पर कोई भी join नहीं है. We are expecting the data from a single table. So this is my virtual table. Now ये आ गया यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे? Under this we are going to perform the where clause. हम क्या करेंगे? अब constraint लगाएंगे and the constraint is the value of D column from P and the value of C column from P must have values lesser than 50 and must have value lesser than 40. So after the execution of where, this is the table. This is the table. Virtual table 1 is the table in which we have the data after the constraint which we have applied in the form of where clause. Okay, now अभी ये हो गया. Now what we are going to do? We are going to apply group by. We are going to apply group by. अभी जो group by होगा वो कहां पर applicable होगा? Group by always grouping the rows that have the same value in the specific column. हर column में जहां जहां पर भी same values होंगे that will be grouped. अभी हम group किसके basis पे कर रहे हैं? We are making the group on the basis of column B. On the basis of column B. तो B में जहां जहां पर भी 7 वैल्यू होगा उनका सबका एक ग्रुप बन जाएगा. एक तो इसका ग्रुप बनेगा इसके साथ, एक बनेगा इसका ग्रुप इसके साथ, एक बनेगा 18 का ग्रुप 18 के साथ और बाकी जितने भी बचेंगे दैट विल कम इन अ सेपरेट ग्रुप. ओके, सो जब मैं ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा सो दिस विल बी माय वर्चुअल टेबल 2. ओके, सो हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क? How it is going to be work? There is one column, sorry, there is one group which belongs to the value 7. This is one group. There is another group which is having 13 as the value. There is another group, let's make it as blue, which have 36 as a separate group. And there is one more which is having 18 as the value for making of the group. Now, so this is the way we are grouping our data. अब इस query के ऊपर हमने चलाना है. अब हमने grouping कर दिया. अब grouping करने के बाद what we are going to do? We are going to put aggregate function. We are going to put aggregate function. तो हम sum करेंगे. अब sum कैसे होगा? Actually मेरा motive इस slide में सिर्फ आपको बताना है कि how grouping will work. So do not get confused. Backend पे आपको सिर्फ answer मिल जब आप query को run करोगे so you have only answer. पर backend पे कैसे चला that you need to be very cautious about that कि हम कैसे काम करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग का रिजल्ट निकालेंगे. एक ग्रुप बनेगा 2 + 23 करके जिसका फाइनल आंसर 25 आएगा. देन वी हैव 18 + 19, देन वी हैव 29 एज सेपरेट एंड देन वी हैव 12 + 13. सो जब सम करेंगे इस कॉलम का यू विल गेट दिस आंसर 25, 37, 25 एंड 29. एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू अप्लाई द लिमिट एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द ऑफसेट. And what is limit? Limit is 2 and offset is 2. So that means we are going to eradicate this and we are going to have two values which is 25 and 29 because our limit is only 2. So the final answer that we get is 25 and 29. I hope group aggregate function is clear to each and everyone. What is why we are using grouping and how we can apply aggregate functions not to the entire column, just onto the group. Now further filtering the groups. अब हम देखते हैं अब आगे और क्या कर सकते हैं. अभी तक हमने ग्रुप बाय पढ़ा है. अब हम ग्रुप बाय को भी क्या हम फर्दर फिल्टर कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज है क्या? ये देखो, हैविंग. वी हैव हैविंग. अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, तो वो कंफ्यूजन आज अपना क्लियर कर लो. सो जो ग्रुप बाय क्लॉज है इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द वेयर क्लॉज. ठीक है,
the group by clause is executed after the where clause, which filters the rows which are to be grouped. Having clause is used to further filter the group data. तो do not get confused. Having से पहले filtration हो गई where के थ्रू, ग्रुप बाय हो गया. अब ग्रुप बाय के बाद जो आपके ग्रुप्स सेलेक्ट हुए हैं उन पे भी अगर आपको कोई फर्दर फिल्ट्रेशन करना है तो आप हैविंग यूज कर सकते हो. तो दैट मींस ये क्लियर हो गया कि जो हैविंग है वो हमेशा किसके साथ यूज होगा, ग्रुप बाय के साथ यूज होगा. आप हैविंग को वेयर की जगह यूज नहीं कर सकते. काम तो वही कर रहा है सेम. हैविंग एंड वेयर बोथ आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट हैविंग विल ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड विद माय ग्रुप बाय. लेट्स सी द एग्जीक्यूशन. अच्छा, और भी है कुछ इसमें. द हैविंग क्लॉज कंस्ट्रेंट्स आर रिटन इन द सेम वे एज द वेयर क्लॉज बट आर अप्लाइड टू द ग्रुप रोज. ग्रुप रोज का क्या मतलब हो गया, that rows which are getting from group by, which we are getting from group by. So this is the syntax. Aggregate function, column name, from table name, where, group by. Now this is my condition. तो पहले where के साथ filtration हुआ, फिर हमने grouping कर दी. अब grouping करने के बाद हमने फिर से filtration कर दी, and then it is going to have select, and after that we will apply limit and offset. Any doubt कि हमने ये having clause क्यों लिया? वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. एक हमने लिया बॉयज, एक हमने लिया गर्ल्स का सेक्शन. ठीक है, तो ग्रुप बाय ने क्या किया, बॉयज और गर्ल्स के सेक्शन बना दिए. ठीक है, तो बॉयज में आ गया 1 अभिनव 63 कुछ ऐसे, दूसरा आ गया 2 अभिनव 64 कुछ ऐसे. गर्ल्स में आ गया 1 A1 65 2 A 67 कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वेयर क्लॉज कब काम करेगा, वेयर क्लॉज तो ग्रुप बाय से पहले काम कर रहा है. ठीक है, तो अब अगर मुझे ग्रुपिंग में फिर से फर्दर फिल्ट्रेशन करनी है, ग्रुपिंग में भी मुझे क्या करनी है, फर्दर फिल्ट्रेशन करनी है, तो ग्रुप बाय के साथ मुझे हैविंग लगाना पड़ेगा. एक तरीके से आप ये सोच लो कि जिसने भी एसक्यूएल बनाया उसने ऐसा नॉमेनक्लेचर दे दिया कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, हैविंग को ग्रुप बाय के साथ यूज कर लो और वेयर को आप सेपरेट यूज कर लो. तो अगर आप इन ग्रुपिंग वाली रोज में भी आपको फिल्ट्रेशन करनी है, जैसे कि मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जिनका डेटा इक्वल टू 63 हो, या मुझे ऐसे बच्चे चाहिए बॉयज सेक्शन में, गर्ल्स सेक्शन में से जिनका डेटा किसके इक्विवेलेंट हो, 65 के इक्विवेलेंट. तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग के बाद भी फिल्ट्रेशन चाहते हो, तो दैट फिल्ट्रेशन यू कैन डू विद द हैविंग पार्ट. एंड द लास्ट पॉइंट इज हैविंग क्लॉज गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ग्रुप बाय क्लॉज, लेकिन बट बिफोर द एग्रीगेट फंक्शन. आई थिंक यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ग्रुपिंग के बाद ही आपको डेटा मिलेगा, तो इसलिए हैविंग क्या होगा, ग्रुप बाय के साथ एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन से पहले हो जाएगा. ओके, चलो इसका भी एक बढ़िया एग्जांपल देख लेते हैं. अब देखो ये जो वर्चुअल टेबल है, ये वर्चुअल टेबल पिछली स्लाइड से मैंने उठाई है. तो जो तीन चीज हैं ये मैंने एग्जैक्टली एक ही उसमें कर दी हैं. ये तीनों जो क्वेरीज हैं दे आर इन द सेम स्लाइड, फ्रॉम पी, वेयर एंड ग्रुप बाय. तो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा कि हमने पी टेबल से डेटा उठाया. ये मेरी ओरिजिनल टेबल है जिसको मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल टेबल. इस पे मैंने वेयर क्लॉज लगाया और वेयर क्लॉज लगाने के बाद मैंने ग्रुपिंग कर दी. ग्रुपिंग किस पे करी, मैंने आपको बताई थी ग्रुपिंग हमेशा उस वैल्यू पे होगी जो कि कॉमन होगी सभी कॉलम्स में. तो क्या होगी, 7 7 13 13 36 18 एंड 18. तो एक ग्रुप तो ये बना, एक ग्रुप ये बना, एंड वी हैव दिस सेपरेट ग्रुप, एंड देन वी हैव 18 एंड 12. अब देखो यहाँ पर इस ग्रुप में भी मुझे क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है. आई हैव टू अगेन पुट फिल्ट्रेशन ऑन द ग्रुप. सो व्हाट विल हैपन, this having part will get executed. That means grouping करने के बाद मुझे सिर्फ वही rows चाहिए जो कि greater than 7 हो, those rows which are greater than 7. So after execution we get this virtual table 3. अब देखो तो ये जो दोनों rows हैं ये वाली, ये दोनों क्या हो जाएंगी, these two rows will be eliminated. Okay, so final answer we get as 18 13 18 16 19 13 26 29 29 36 33 29 and 12 18 11 9 followed by 13 18 23 and 7. Then after that मैंने क्या बोला था, ग्रुप बाय के साथ हैविंग, और हैविंग के बाद हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे. तो सम विल बी, इस ग्रुप का कितना सम होगा 37, इस ग्रुप का सेपरेट, और इस ग्रुप का सम कितना होगा 25. And again we are putting the limit. लिमिट कितनी है, लिमिट इज 2 and offset is 2. That means मुझे ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है. लिमिट इज 2, so मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है 29. So the final result set will be 29. So this is the way your having clause will work. I hope the agenda is clear. What is the difference between where and having. चलो भाई, एंड दिस इज माई लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी. मैं तो चाहूंगा कि जिसने भी पेन और पेपर लिया हुआ है वो छोटे छोटे नोट्स बना ले, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि ज्वाइन कैसे काम करता है,
कंपाउंड ज्वाइन कैसे काम कर रहा है, एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग कैसे हो रही है, या हैविंग क्लॉज कैसे काम कर रहा है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई, बस आपको पता करना है कि जब क्वेरी आपको विजुअल होगी तो विजुअलाइजेशन के बाद आपकी क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करेगी। तो अगर ये आपकी चीजें टिप्स पे हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू एग्जीक्यूट द क्वेरी इन वेरी सिंपल मैनर। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपको, चाहे छोटी क्वेरी हो चाहे बहुत बड़ी क्वेरी हो, आंख मूंद के सबसे पहले देखो डेटा कहां से सिलेक्ट करना है। सो उसके लिए फ्रॉम है या ज्वाइन है। दैट मींस एक टेबल से डेटा भी आ सकता है, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम टेबल टी और फ्रॉम टेबल T1 कॉमा T2 या ज्वाइन स्पेसिफिक। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, कोई भी ज्वाइन स्पेसिफिक। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डेटा आ कहां से रहा है। फ्रॉम एंड ज्वाइन क्लॉज आर फर्स्ट एग्जीक्यूटेड टू डिटरमाइन द टोटल वर्किंग सेट ऑफ डेटा। जो आपकी वर्चुअल टेबल बनेगी, सबसे पहले आपको वर्चुअल टेबल लेके आनी है, तो वो कहां से आएगी, फ्रॉम वाले पार्ट से, फ्रॉम या ज्वाइन वाले पार्ट से। ठीक है बच्चों, उसके बाद वेयर कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल होंगे। वेयर कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू द इंडिविजुअल रोज। अभी अंकित ने क्वेश्चन पूछा था, यही डिफरेंस है वेयर और हैविंग में। हैविंग क्या कर रहा है, ग्रुपिंग, जो भी रोज आपने ग्रुप की हैं उनके बेसिस पे वो हैविंग कर रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है। यहाँ वेयर कंस्ट्रेंट क्या करेगा, वो जो भी आपके टपल्स हैं आपके टेबल के अंदर, हर एक टेबल के ऊपर, हर एक टपल के ऊपर वो क्या करेगा, वेयर कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेगा। और जो रो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दैट वेयर कंस्ट्रेंट विल सिंपली डिस्कार्डेड दोज रोज। तो नंबर 2 क्या हो गया, वेयर हो गया। अब आते हैं, द रिमेनिंग रोज आफ्टर द वेयर कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड आर देन ग्रुप्ड बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज इन द कॉलम स्पेसिफाइड इन द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है या कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, बैकएंड पे कैसे रिजल्ट निकालना है, तो देख लो। किसी किसी को ये हो लग रहा होगा कि ग्रुप बाय हम पहले कर देंगे वेयर से, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होकर आंसर आपको रिटर्न करेगी, वो इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे कर रही है कि पहले फ्रॉम करेगा, डेटा सेट्स कहां से उठाना है, कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब कंस्ट्रेंट लगाने के बाद जो रोज बचेंगी उनमें हमने ग्रुपिंग कर दी। ओके, then if the query has a group by clause, then the constraint in the having clause are then applied to the grouped rows, which discard the grouped rows that do not satisfy the constraint. This is my fourth step. ठीक है, then select part. अब देखो, हम सबसे पहले सेलेक्ट ही देखते हैं, तो कभी सेलेक्ट मत देखा करो, सेलेक्ट देखने से कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले देखो कि फ्रॉम में क्या है, उसके बाद कंस्ट्रेंट अप्लाई करो, ग्रुपिंग करने की जरूरत या ग्रुप उन्होंने दिया है लिख के तो ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग के बाद अगर हैविंग दिया है तो हैविंग कर लगाओ, हैविंग के बाद फिर सेलेक्ट करो। Select part of the query is then executed, which selects the specified columns and evaluate expressions or applies the aggregate functions. इन के बाद हम क्या करेंगे, जितनी अब रिमेनिंग बची रोज, उस पे हम क्या करेंगे, अगर डुप्लीकेसी है और उन्होंने डिस्टिंक्ट दिया है, सो देन डिस्टिंक्ट विल बी एप्लीकेबल इन द कॉलम मार्क्ड एज डिस्टिंक्ट विल बी एप्लीकेबल। और डिस्टिंक्ट की फंक्शनैलिटी आपको पता है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट, कि अगर कोई भी यूनिक एक डुप्लीकेसी आ रही है, डुप्लीकेसी मींस सिमिलर काइंड का टपल है, तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर क्या करेगा, किसी एक टपल को या बहुत सारे टपल्स को हटा देगा और आपको रिटर्न कर देगा एक डिस्टिंक्ट टपल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, देन फाइनली 7, if an order by is specified by the order by clause, the rows are then sorted by the specific data in either ascending or descending order. And finally, the rows that fall outside the range specified by the limit and offset are discarded, leaving the final set of the rows to the written query. These are the total 8 steps that you need to follow while एग्जीक्यूटिंग योर एसक्यूएल इन योर इनफीटीक्यू एग्जाम। इनको किसी एक पेपर पे नोट्स के फॉर्म में लिख लेना और याद कर लेना कि किस ऑर्डर में हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। आई गेस अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई और ज्वाइंस की फंक्शनैलिटी बैकएंड पे आपको पता ही है कि कैसे काम कर रहा है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसलिए बार बार मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम टाइम फ्रेम में आप एसक्यूएल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो लेट्स सी। सो ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम या ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे। वेयर वाला क्लॉज, वेयर क्या बोल रहा है, वेयर p डॉट डी इज लेस देन 50 एंड p डॉट सी इज लेस देन 40। अब ढूंढ लो कौन कौन सी हो सकते हैं। p डॉट डी 50, लेस देन 50, ये है लेस देन 50, हाँ जी है, लेस देन 40 है, हाँ जी है, तो ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं और तरीके से सजा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, रेड से कर देता हूं। चलो ये वाला टपल सेलेक्ट हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, p डॉट डी इज लेस देन 50, no, so this is not going to be selected at all. Okay, now in this case p dot d is less than 50, yes, p dot c is less than 40, yes, this is also going to be selected, right? Now p dot d is less than 50, no,
It is going to be selected? Yes. It is going to be selected? No, because P dot C is not less than 42. ये गया. अब कौन सा बचा? ये वाला नहीं सेलेक्ट होगा, ये नहीं सेलेक्ट होगा. It is going to be selected? Yes, it is going to be selected. It is going to be selected. 1816, yes, it is also going to be selected and it is also going to be selected. तो अब हमारा ये वाला काम खत्म हो गया. That means टेबल पे भी आ गए. फर्स्ट चलेगा ये, सेकंड चलेगा ये. अब मैंने क्या बताया था? थर्ड चलेगा ग्रुप बाय. ग्रुपिंग कैसे होगी? कॉमन वैल्यूज कहाँ कहाँ है? कॉमन वैल्यूज इसको मैं पिंक कर लेता हूँ. एक तो है 7 ये जो हमने सेलेक्ट किया और एक है 7 ये. दैट मीन्स ये दोनों एक जगह आ जाएंगे. यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ 2 7 9 12 23 7 18 16 ये यहाँ आ गए. अब दूसरा ग्रुप किसका बनेगा? 13 और 13 का एक ग्रुप ये बनेगा. उठा लेते हैं इसको भी. 18 13 what is the next value? 18 13 18 16 और 13 18 23 and 7. ठीक है. नाउ नेक्स्ट किसको उठाएंगे अब हम? वी आर गोइंग टू फैच 13 हो गया और ये 13 हो गया. हमने गलत 13 तो नहीं उठा लिया. 18 13 18 16 सॉरी हमने गलत उठा लिया. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. इसको नहीं उठाएंगे. 19 13 26 एंड 29. ठीक है. अब ब्लू ले लेते हैं. अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं. नेक्स्ट ग्रुप किसके बेसिस से बनना चाहिए? 36. क्या 36 का इक्विवेलेंट और कोई है? नहीं जी, 36 के इक्विवेलेंट कोई नहीं है. तो यहाँ इसको लिख लेते हैं सेपरेट. 29 36 33 29. ठीक है. मुझे करेक्ट कर लेना, रिमाइंड कर लेना कहीं मैं गलत ना हो जाऊं. नेक्स्ट इज 18. तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? एक सेट में आ जाएंगे. तो हम लिख लेते हैं 12 18 11 9 फॉलोड बाय 13 18 23 एंड 7. ठीक है. अब ग्रुपिंग हो गई. अब हम देखते हैं हैविंग. हमें कौन से उठाने? P डॉट बी मस्ट बी लेस देन 35. दैट मीन्स कौन कौन से हटेंगे? P डॉट बी. बी देखते हैं कौन सा है. A B C D. कौन सी वैल्यू ग्रेटर जा रही है? ये वाली जा रही है. तो इसको तो मैं बिल्कुल ही हटा दूंगा यहाँ से. इसको तो मैं यूज ही नहीं करूंगा. ठीक है. ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया. अब हैविंग के बाद हमें क्या करना है? हैविंग के बाद व्हाट वी नीड टू डू? क्या था हमारे उसमें? देखो ध्यान से. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सेलेक्ट पार्ट. तो अब हम सेलेक्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं. लेट्स सी. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सम डॉट P डॉट A. P डॉट A किसका सम करेंगे? P डॉट A का. ओके. सो एक हमारे पास आ जाएगा. कितना आ जाएगा? कितना लिखा है यहाँ पे? 2 7 आई गेस मैंने यहाँ कुछ गलती गड़बड़ किया. 7 7. ओके. सो 1 इज 25. इन दोनों को सम करके हम कर देंगे 25 आ गया. यहाँ पर आ जाएगा 16 16 7 7 16 का है कोई? ये 16 कैसे लिख दिया मैंने? 7 7 हो गया. 13 13 2 23. ठीक है. 18 एंड 12. ठीक है. 18 18 का आ जाएगा अगेन 25. ठीक है जी. देन वी हैव 13 एंड 13. Then we have again 25. Then we have 19 plus 18. कितना था? Okay. So finally we get 25, 25 and 37. ये तीन आएंगे. ठीक है. 25, 25 and 37. Okay. Then what we are going to do? We are going to perform the order by. Order by B. यहाँ कुछ मैंने mention नहीं किया है. So it will come ascending order. 25, 25 and 37. After that we have limit 2 and offset is 1. That means we need to pick up
2 वैल्यूज एंड वी नीड टू इरेडिकेट 1. अब डिस्टिंक्ट क्लॉज ऑलरेडी चल चुका है तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 25 और 37. ठीक है. सो लिमिट विल बी 2 एंड ऑफसेट इज 1. एक छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा 37. सो द करेक्ट आंसर इज 37. So in this the way we are going to apply it.